गुलबर्गा शहर के मशहूर अल्तैबा इंग्लिश मीडियम स्कूल की जानिब से यंग इनोवेशन एक्सपो 2026 साइंस एंड मैथ्स एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां तालीम किताबों से बाहर निकलकर सोच, तजुर्बे और इनोवेशन का हिस्सा बनती हैं। यह एक्सपो स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक सोच, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को उजागर करने के मकसद से मुनक़िद किया गया था। इस एग्जीबिशन के जरिए स्टूडेंट्स ने अपनी सोच को मॉडल की शक्ल दी, जहां साइंस और मैथ्स को रोज़मर्रा ज़िंदगी से जोड़कर पेश किया गया। इस खास प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल, मोहम्मद ताहिर अली कॉर्पोरेटर, डॉक्टर शकील अहमद खान, डॉक्टर उमर मौज़म अली और अब्दुल हसीब नुमान ने शिरकत कर स्टूडेंट्स के सभी मॉडल्स और प्रोजेक्ट को देखकर खुशी जाहिर करते हुए स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश कर कहा कि ऐसे इदारों से बच्चे कामयाबी हासिल करते हैं। इस एक्सपो में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने हाइड्रोलिक ब्रिज, ह्यूमन एयर, हाइड्रोलिक क्रेन, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एक्सीलरेटरी सिस्टम, सोलर कार, वाटर लेवल इंडिकेटर, 3D शेप्स, मेजरमेंट, मैक्स पार्क, मैजिक स्क्वायर, 7 वंडर्स और क्रॉप ग्रोन इन इंडिया जैसे बेहतरीन मॉडल्स तैयार किए गए थे, जो स्टूडेंट्स की मेहनत, समझ और इनोवेटिव अप्रोच का जिंदा सबूत है। इस तरह के प्रोग्राम से स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कॉन्फिडेंस, टीम वर्क और प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप होती है। इस मौके पर बेस्ट मॉडल तैयार करने वाले स्टूडेंट को उनकी मेहनत और इनोवेशन के लिए अवार्ड देकर अप्रिशिएट किया गया है। अल्तैबा इंग्लिश मीडियम स्कूल इस एक्सपो के जरिए वालिदैन, टीचर्स और समाज को ये पैगाम देना चाहता है कि तालीम सिर्फ नंबर्स या मार्क्स तक महदूद नहीं है, बल्कि सोचने, इजाद करने और एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने का जरिया है। अल्तैबा इंग्लिश मीडियम स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, स्टाफ और स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स की मेहनत से यह प्रोग्राम कामयाब हुआ है। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल तलाश कर रहे हैं जहां दीन और दुनिया की तालीम के साथ तमीज़ और तहजीब सिखाई जाए, तो अल्तैबा इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। I Iqra Tamkin of grade 6. Today I am presenting a smart invention called automatic street light. An automatic street light is a smart lighting system that turns on and off by itself without manual intervention. Madul Khadija of class 4. Have you ever wondered how a tiny egg becomes a hen? Today I will show you an amazing life journey of hen. My project is called the life cycle of hen. The life cycle of hen consists of 5 main stages. Ear, the middle ear, the inner ear. The outer ear consists of pinna, ear canal. The pinna collects sound waves from the surrounding, direct them to ear canal towards the eardrum. My name is Siddiq. I am studying in 8th standard. My project name is a windmill. A windmill converted to wind energy into electricity. The generator changes mechanical energy which can be used to light bulbs. I asked Nagosya of class 5. Have you ever seen a bridge that opened by itself to let big ships pass? This amazing work is done using hydraulic power. And my topic is hydraulic bridge. Now I am going to start the hydraulic pump. Once I apply hydraulic pressure, the bridge arms will rise with the help of hydraulic pressure. You can see that the bridge arms will rise with the help of hydraulic pressure. And we are super excited to share with you all about the 7 wonders of the world. The 7 wonders of the world. The Great Wall of China is located in China. It was built in 7th century BC, 16th century AD. Chichen Itza is located in Yucatan and Mexico. It is built in 600 and 1200 AD. I, Khizatu Gubra of class 1st, and my topic is addition machine. I will explain you how it works. Addition is a basic mathematical operation that combines 2 or more numbers. Our model name is geostationary satellite. Uses of geostationary satellite is television and radio broadcasting and weather forecasting, communication, television, mobile phones, internet. This is a geostationary satellite model. A geostationary satellite is a type of satellite that orbits the Earth at the same rotational speed as the Earth itself. बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे और
बड़े उम्दा अंदाज में उन्होंने पूरे मॉडल्स दिल से तैयार किए हैं। मुझे देखकर बड़ी मसरत हो रही है और इसमें 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे लगे जो बिल्कुल करंट जो अफेयर्स हैं, जो हालात हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर तैयार किए गए। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने स्कूल दीनी और असरी तालीमात के साथ साथ हालात और पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उसके साथ साथ भी चलें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को और मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, ना सिर्फ हाई स्कूल बल्कि PUC डिग्री भी तक भी आगे चलकर अपनी तरक्की को हासिल करे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। के बच्चों को तमाम ये चीज़ों से, जितने भी ये स्क्रीन टाइम है या सोशल मीडिया है या एंटरटेनिंग चीज़ें हैं, इन लोगों से दूर, इन चीज़ों से दूर रखिए। बच्चों को लिमिटेड टाइम देना है इसको स्क्रीन टाइम। तो ऑलवेज एनकरेज द किड्स, डू सम आउटडोर एक्टिविटीज़ इन द इवनिंग एंड कीप मेक देम ए हैबिट। उनको एक आदत बनाइए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पढ़ें, कोई चीज़ें को मुताला करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनकी क्रिएटिविटी और इनकी तमाम चीज़ें बाहर उभर के आती हैं। सो वी अप्रिशिएट देम, वी कॉन्ग्रेचुलेट देम and all the organizers and the school authorities, the teachers and the students, and especially the parents who have supported the kids for this fabulous exhibition. We congratulate them and wish them all the best for their future. बच्चों का प्रोजेक्ट भी माशाल्लाह अच्छा है। पूरा प्रोजेक्ट जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा समझे बच्चे, जो भी एक्सप्लेन करे हुए हैं माशाल्लाह अच्छा करे हुए एक्सप्लेन, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिखा। और टीचर का भी कॉर्पोरेशन बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। स्कूल भी अच्छा है, बढ़िया है। जो भी पेरेंट्स है उनके लिए मैं यही कहूँगा कि एडमिशन कराइए आप। टीचिंग अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है और दीनी मालूमात भी अच्छे कराते हैं यहाँ पे। अच्छा है स्कूल का जो भी फाउंडेशन है, बुनियाद जो है मजबूत है, अच्छी है। आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अल-तैयबा स्कूल का एग्जीबिशन अटेंड कर रही हूँ। इट्स एन ऑनर टू अटेंड दिस फंक्शन as I'm very happy with this school because my child is here, my daughter is here. She is getting a very good education from here and I appreciate this school and management. यहाँ पे जो मेरे भाई और बहन पढ़ रहे हैं उनके एजुकेशन में जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, स्टेज फियर जा रहा है बच्चों में, और भी काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जो अल-तैयबा स्कूल काफ़ी अच्छे से प्रोसीड कर रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अल-तैयबा में न्यू एडमिशन्स आप लोग करिए, अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन कराइए। मेरा नाम सैयद अकील है और मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ता है। मैं अल-तैयबा वालों ने यहाँ पे एग्जीबिशन रखा था आज, तो हम सब मॉडल देखे हैं यहाँ पे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे मॉडल बनाए बच्चे, बहुत अच्छा लगा। और अल-तैयबा स्कूल में जो है पढ़ाई तालीम और बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। और स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद ये सक्सेसफुल एग्जीबिशन के लिए, और मंसूर भाई को स्पेशली और अस्मा मैडम को बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा एग्जीबिशन अटेंड करके। जो एडमिशन कराना चाह रहे हैं या माशाल्लाह से पढ़ेगी और बहुत अच्छी है यहाँ पे, और एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ माशाल्लाह से बहुत अच्छा है स्कूल में। आप बिल्कुल यहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आप एडमिशन दिलाइए अपने बच्चों को और इंशाल्लाह से उनका फ्यूचर अच्छा होगा यहाँ पे इंशाल्लाह। आज अल-तैयबा स्कूल में साइंस एग्जीबिशन रखा गया था जिसमें तक़द्दुस मआब हज़रत शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह शेख दक्कन और सदर जवामिल कलीम एजुकेशनल ट्रस्ट की खुसूसी दुआएं हमारे साथ शामिल हुई। उसके अलावा आज के जो मेहमान खुसूसी थे डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल, प्रेसिडेंट सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी कलबुर्गी, जनाब मोहम्मद ताहिर अली वार्ड नंबर 15 कॉरपोरेटर, जनाब डॉक्टर शकील अहमद ख़ान साहब अल-नूर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डॉक्टर उमर मुअज़्ज़म अली जयदेव हॉस्पिटल, इन तमाम लोगों ने हमारे इस साइंस एग्जीबिशन में शिरकत की। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं उन तमाम पेरेंट्स को जिन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे स्टूडेंट्स की मोटिवेशन किया, उन्हें इनकरेज किया।
इंशाल्लाह अज़ीम we will organize same exhibition in future also. सो मैं एक बार और तमाम पेरेंट्स का, तमाम मेहमान खुसूसियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुल्लाह खैर। We are very happy today that the Young Innovation Expo 2026 organized at Al Taiba School was very successful and meaningful. The main aim of this science exhibition not just to showcase projects but to give students an opportunity to understand and learn practically. We felt proud to see that the children are not limited to book knowledge but are able to connect science with real life. The teachers also played a very important role in this exhibition, guiding the students. I would like to say that through such exhibitions, our school will always strive to provide students with quality education along with practical exposure. I sincerely thank all the students, teachers and parents who made this science exhibition so wonderful and memorable. Thank you so much. Myself Farah Fatima, coordinator of this school Al Taiba. Today I am here, I want to say that the exciting students, the smiling faces of the students and the exhibition here we have organized, the students are having a very progressive minds, and I can say that small minds with the big ideas, and it is just like from classroom to the creativity. And in my opinion, all the students have done very well, right from the primary to the high school in all the streams, science and mathematics. I appreciate all the students' performances, and I congrats simultaneously to the parents that the students are going very well. And the last I want to say that the teachers are very much regular with their guidance and the support. Lastly, I want to say thanks and congrats to the management of this school, Muhammad Mansoor sir and Asma ma'am, that to organize well planned and a great successful exhibition. I am teaching computer science in Al Taiba English Medium School. Seeing students explain with confidence is the real success of teaching. Young minds, bright ideas and confident voices, that what we see today. It encourages creativity, communication and teamwork.